Good morning, students. Our subject is Design of Concrete Structure 1. Our topic is Design of Column by Working Stress Method. In today's lecture, we are going to study about Introduction of Column. Introduction about the column. Column is a compression member, is an important element of every reinforcement concrete structure. Every RCC structure, column is an important structure. These are used to transfer the load of superstructure to foundation safely. Mainly column, strut and pedestal are used as a compression member. Column is used as a compression member in building, bridges, supporting system of tank, factories and many more such structures. यहाँ पे कॉलम जो है उसकी हमें आज स्टडी करना है। तो कॉलम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आरसीसी में ये हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक एलिमेंट है। दीज आर यूज टू, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, इस ये ऐसा है कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है बिल्डिंग का वो फाउंडेशन में ट्रांसफ़र होता है थ्रू कॉलम। बिकॉज ऑफ दैट कॉलम इज़ इम्पॉर्टेंट। मेनली कॉलम, स्ट्रट एंड पेडिस्ट्रन आर यूज एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर। जो कॉलम है ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। कॉम्प्रेशन मेंबर्स मीन्स क्या होता है, ये दो है तो यहाँ से बीम होता है, नीचे से फुटिंग है, तो इसमें बीच में का ये स्ट्रक्चर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं, ब्रिजेस में हम यूज़ करते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम में कॉलम, टैंक है कुछ उसको सपोर्टिंग सिस्टम देना है तो वहाँ पे हम कॉलम का यूज़ करते हैं। Column is defined as a vertical compression member which is mainly subjected to axial load and the effective length of which exceed 3 times its least lateral dimension. Classification of column. The column may be classified based on different criteria as follows. Classification of column. Here 3 classification of column. First, based on type of reinforcement. It is based on reinforcement. How we provided reinforcement, where we provided reinforcement, which this type of based on reinforcement. Second, based on loading, the loading of beam on which the type of loading is depend. And third, based on slenderness ratio, it is depend on a height of column. So these 3 types of column. First, based on type of reinforcement. Here we have to study about based on type of reinforcement. Reinforcement concrete column may be classified into following 3 types. Here are 3 types of column on type of reinforcement provided. Where we provided reinforcement on which type of reinforcement column. First is tied column, second is spiral column and third is composite column. First is a tied column. What is meant by tied column? Where the main longitudinal bar are enclosed with closely spaced lateral ties. Here we provided main longitudinal bars. This is a column. Here we provided a longitudinal bar closely spaced between these lateral ties. So it is called as a tied column. Okay, next second is called as a spiral column. Spiral column means we provided here a circular column which provided a longitudinal bars where the main longitudinal bar are enclosed with closely spaced and continuously wound spiral reinforcement. This is a continuously spiral reinforcement, means like this is a fully continuously spiral reinforcement. Okay, and so closely reinforcement here we provided, so it is called as a column. Spiral column provided in a circular shape. Okay, so next third is a composite column. Instead of longitudinal bar, if the column is reinforced with structural steel shape known as a composite column. मतलब यहाँ पे कंपोजिट कॉलम में हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बार के बजाय हम क्या
प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील शेप, मीन्स सी शेप जो होता है, सी शेप या फिर आई शेप, ऐसे जो कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट। ये डायग्राम्स में आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है टाइड कॉलम। यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगुलर शेप का ये कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर शेप, उसका यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार से, और ये यहाँ पे ये टाइड प्रोवाइड किया हमने उसको टाई करने के लिए, ये हमारे बार से। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बार से ये हमने यहाँ पे, और ये जो टाइज है इसमें बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम स्पेसिंग। यह हो गया टाइड कॉलम। अभी बी सेकंड डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पाइरल कॉलम, मीन्स ये जो सर्कुलर कॉलम है, तो ये देखो कैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली टाई प्रोवाइड किया है। ये स्पाइरल जो है टाइज ये कंटिन्यूसली है। ये यहाँ पे कैसा है, ये पूरा अराउंड होता है। ये जो टाइड कॉलम है इसके अंदर ये ना, ये हम रेक्टेंगुलर में ही प्रोवाइड करते हैं, ये ऐसे ये सेपरेट सेपरेट होते हैं टाइज, लेकिन इसके अंदर जो स्पाइरल्स होते हैं, जो टाइज होते हैं, वो हम कंटिन्यूसली टाइज प्रोवाइड करते हैं, और इसके बीच में की जो स्पेसिंग होती है बहुत ही क्लोज्ड स्पेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम स्पाइरल कॉलम। थर्ड यहाँ पे है हमारा टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। दिस ये जो टाइप्स है कॉलम के, ये रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब आप यहाँ पे कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो। थर्ड यहाँ पे है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम मतलब आपको यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन प्रोवाइड किया है। ये जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन है ये आई शेप का है, तो अलग अलग शेप के आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन प्रोवाइड करके भी कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा लोड होगा तो उस कंडीशन में हम ये कंपोजिट कॉलम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड जो टाइप है बेस्ड ऑन लोडिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन लोडिंग। ओके, कॉलम में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नेचर एज लोडिंग। उसका नेचर कैसा है लोडिंग का, उसके ऊपर ये सेकंड टाइप ऑफ लोडिंग डिपेंड है। Here three type of loading. First is column with axial loading, second column with uniaxial eccentric loading, and third column with biaxial eccentric loading. तो ये थ्री अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग काय के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे हम अभी स्टडी करेंगे। तो कॉलम विद एक्शियल लोडिंग, व्हाट इज मीन बाय कॉलम विद एक्शियल लोडिंग, मीन्स यहाँ पे हमारा एक कॉलम है ये ऐसा, और एक्शियल लोडिंग मीन्स क्या है, इसको चारों तरफ से भी ऐसे क्या है लोडिंग है, और बीच में ये कॉलम है, तो इसको बोलते हैं हम एक्शियल लोडिंग। ये ऐसे कॉलम कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जो इंटीरियर कॉलम है, बीच में का कॉलम है, तो वो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोवाइड करते हैं। ये है इंटीरियर कॉलम्स बोल सकते हैं आप, ये ऐसा है, इसको एक्शियल लोडिंग बोलते हैं। इसका अनादर भी है हमारे पास में। अनादर लोडिंग कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, या तो हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम कॉलम विद एक्शियल लोडिंग। ओके, इंटीरियर कॉलम भी बोल सकते हैं जिसको चारों तरफ से भी बीम है, इसको बोलते हैं कॉलम विद एक्शियल लोडिंग। ओके, सेकंड हम अपोजिट डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में हम लोड प्रोवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं हम कॉलम विद एक्शियल लोडिंग। ओके, सेकंड यहाँ पे हमें स्टडी करना है कॉलम विद यूनिएक्शियल इसेंट्रिक लोडिंग। यहाँ पे लोडिंग कैसी है, इसेंट्रिक लोडिंग है। तो कॉलम विद यूनिएक्शियल लोडिंग मीन्स कैसा, तो यहाँ पे एक कॉलम है हमारा और उसके थ्री डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 डायरेक्शन में ही लोडिंग प्रोवाइड किया है, तो इसको बोल सकते हैं हम यूनिएक्शियल इसेंट्रिक लोडिंग। ये इसेंट्रिक टाइप है, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम विद यूनिएक्शियल इसेंट्रिक लोडिंग। और भी इसका है, ये ऐसा कॉलम है और उसके एक ही डायरेक्शन में हमने लोड प्रोवाइड किया है, अदर 3 डायरेक्शन में कुछ मतलब बीम का लोड वगैरह नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कॉलम विद यूनिएक्शियल इसेंट्रिक लोडिंग। यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप है कॉलम विद बायएक्शियल इसेंट्रिक लोडिंग। बायएक्शियल मीन्स क्या है, यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर का ये है
कॉलम है और कॉर्नर के कॉलम में एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे दो टाइप बीम यहाँ पे एक्ट हो रही है, ये कॉर्नर कॉलम है, तो उसको बोलते हैं हम बायएक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। तो ये कहाँ पे प्रोवाइड होता है? कॉर्नर कॉलम में। ओके, जहाँ पे कॉर्नर का कॉलम है, जैसे कि पार्किंग के जो लास्ट वाले कॉलम्स होते हैं वो हम बायएक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इंटीरियर्स कॉलम है, मतलब जो बीच में के कॉलम्स है, वो हम एक्सियल लोडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सियल लोडिंग मीन्स क्या है? एक कॉलम है, उसके चारों साइड से भी है, देखो 1 2 3 और 4, जिसके चारों साइड से भी क्या है? लोड एक्ट हो रहा है, इसको हम इंटीरियर कॉलम भी बोलते हैं। उसके बाद में जो कॉलम है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, या तो फिर ऐसे वाई डायरेक्शन में लोड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सियली लोडिंग। ये हो गया रिलेटेड टू एक्सियली। अभी यूनी एक्सियल काय को बोलते हैं हम? जिसकी 3 डायरेक्शन में लोड एक्ट होता है, या फिर ओनली 1 डायरेक्शन में, कॉलम के एक ही डायरेक्शन में लोड ऐड होगा, या फिर 3 डायरेक्शन में लोड आएगा कॉलम के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम यूनी एक्सियल लोडिंग। और बायएक्सियल लोडिंग मीन्स क्या है? जिसके अपोजिट जिसके कॉर्नर कॉलम्स होंगे तो उसके हम परपेंडिकुलर लोडिंग है। ये कैसे है? 90 डिग्रीज में ऐसी परपेंडिकुलर लोडिंग है, तो उसको बोलते हैं हम बायएक्सियल कॉलम। तो ये लोडिंग के हिसाब से 3 टाइप्स हो गए हैं। क्या है? पहला एक्सियल लोडिंग है, दूसरा है हमारा यूनी एक्सियल लोडिंग, और तीसरा है हमारा बायएक्सियल लोडिंग। ओके, तो इंटीरियर कॉलम और एक्सियली लोडेड कॉलम, जो पहला है जिसके ऊपर चारों भी लोड एक्ट होती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं हम एक्सियली लोडेड कॉलम। इंटीरियर कॉलम कैरीज अ बीम आइदर ऑल 4 डायरेक्शन और ओनली अपोजिट डायरेक्शन। आपने यहाँ पे देखा होगा, या फिर 4 डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो बीम एक्ट होते हैं, जो लोडिंग एक्ट होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सियली लोडेड कॉलम। जो बायएक्सियली है, ये यहाँ पे हमने देखा यूनी एक्सियली लोडिंग कॉलम। तो ये कैसा है? यूनी एक्सियली कॉलम में देखो 3 डायरेक्शन में या फिर 1 डायरेक्शन में, कॉलम अलॉन्ग विद द साइड ऑफ बिल्डिंग विच कैरी अ बीम आइदर 3 ऑर्थोगोनल डायरेक्शन और सिंगल बीम इन 1 डायरेक्शन। यहाँ पे हमने देखा बायएक्सियल में क्या है? 3 डायरेक्शन में या फिर ओनली 1 डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं हम यूनी एक्सियली बेंडिंग। थर्ड है हमारा बायएक्सियल बेंडिंग। तो बायएक्सियल बेंडिंग मीन्स क्या है? कॉर्नर कॉलम और द कॉलम विच कैरी अ बीम इन अ 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं, ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉर्नर कॉलम्स, तो इसको बोलते हैं हम बायएक्सियली लोडिंग कॉलम। ओके, थर्ड टाइप है हमारा कॉलम का, जो है बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशो। मीन्स कॉलम के हाइट के ऊपर डिपेंड है हमारा, उसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशो। कॉलम में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन स्लेंडरनेस रेशो. First is short column, second is long column. Long column is also called as a slender column. Okay, what is mean by short column? When the ratio of effective length means L effective divided by B or D, when the ratio of effective length, L effective means effective length of the column की जो भी effective length है, to its lateral dimension does not exceed 12. मीन्स यहाँ पे क्या है? बी और डी, इन दोनों में से जो भी लिस्ट होगा, छोटा होगा, वो हमें यहाँ पे लेना है। L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी और डी। तो ये जो रेशो है ये कैसा होना चाहिए? 12 से छोटा होना चाहिए। डज नॉट एक्सीड 12, इट इज़ टर्म एज अ शॉर्ट कॉलम्स। मीन्स क्या है? यहाँ पे हमारा 12 बड़ा होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। मीन्स यहाँ पे हमने देखा अभी यल इफेक्टिव है हमारे पास में, और डिवाइडेड बाय बी। मीन्स क्या है? बी मीन्स हमारा एक कॉलम है जिसकी साइज़ है 350 mm बाय 450 mm। तो 350 बाय 450, इनमें से कौन सा छोटा है? लीस्ट डायमेंशन कौन सा है? 350।
जो यहाँ पे हमने देखा अभी 350, ये कैसा है, स्मॉल डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे फिर, ये बी जो लीस्ट डायमेंशन है वो लेंगे। तो रेशो कैसा आएगा फिर, यल इफेक्टिव, जो भी इफेक्टिव लेंथ है हमारे कॉलम की वो डिवाइडेड बाय बी और डी में से जो छोटा होगा वो हम लेंगे। ये रेशो कैसा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट कॉलम। सेकंड है हमारा यहाँ पे लॉन्ग कॉलम। What is mean by long column? A long column is a one whose ratio of effective length to a lateral dimension. इसका क्या होगा, यल डिवाइडेड बाय बी और डी का जो रेशो है ये बड़ा होगा 12 से, क्या है, ये 12 से बड़ा होगा। डायमेंशन एंड एक्सीड 12, ये कैसा होगा, 12 से बड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। जो 12 से छोटा होगा उसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम, जो 12 से बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम लॉन्ग कॉलम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हियर वी हैव टू स्टडी नेसेसिटी ऑफ आरसीसी कॉलम। क्यों ज़रूरत है, हमने यहाँ पे अभी देखा कि आरसीसी कॉलम क्या है, वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसके बाद में हमने टाइप ऑफ लोडिंग कैसे है उसकी, या फिर उसके ऊपर कैसे लोड आएंगे, रेनफोर्समेंट हम वहाँ पे कैसे प्रोवाइड करना है हमें, उसके बाद में स्लेंडर रेशो के हिसाब से कैसे टाइप ऑफ लोडिंग कॉलम्स आते हैं, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। अभी हमको स्टडी करना है नेसेसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करना, क्योंकि कंक्रीट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। जो कंक्रीट है ये कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है, और हमारा जो कॉलम है वो कंप्रेशन मेंबर है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या होता है, 10 कॉलम कैन बी मेड अ प्लेन कंक्रीट, बट हम प्लेन कंक्रीट से सिर्फ सिंपल प्लेन कंक्रीट मीन्स क्या है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये प्लेन कंक्रीट हो गया, ये हमने यूज़ किया प्लेन कॉलम बनाने के लिए, हमने प्लेन कंक्रीट यूज़ किया। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ऐसा है, इसका डिसएडवांटेजेस ऐसा है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवर्सेबल टू यूज़ अ आरसीसी इंस्टेड ऑफ प्लेन कंक्रीट कॉलम बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करते हैं उसके हम यहाँ पे कुछ रीज़न स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न हमारा ऐसा है कि अ प्लेन कंक्रीट कॉलम रिक्वायर अ वेरी लार्ज एरिया। हमने प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड किया तो हमें ये एरिया बढ़ा लेना चाहिए। ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है, तो जहाँ पे मतलब सिर्फ प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे तो ये प्लेन कंक्रीट का है और ये आरसीसी कंक्रीट का है। तो क्या होगा, हम जब आरसीसी प्रोवाइड करेंगे तो कॉलम की साइज़ छोटी हो जाएगी। अ प्लेन कंक्रीट कॉलम रिक्वायर अ वेरी लार्ज एरिया कंपेयर टू आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम के कंपैरिजन में प्लेन कंक्रीट को ज़्यादा एरिया लगता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, आरसीसी कॉलम। Thus by using RCC column a lot of space can be used as the size of column will be less। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कॉलम कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो भी जगह रहेगी हमारी, ये प्लेन कंक्रीट का कॉलम है, ये प्लेन कंक्रीट का कॉलम है और आरसीसी का इतना ही आता है, ये छोटा सा आरसीसी का है। क्योंकि क्या होगा, आरसीसी है तो लोड ज़्यादा आएगा तो भी ये स्मॉल एरिया में कवर कर लेगा, लेकिन ये बचा वाला जो एरिया है अभी इतना सारा, तो ये शेडेड एरिया, तो ये क्या कर सकते हैं हम अदर पर्पज़ के लिए, या फिर हमारी रूम की साइज़ इससे बड़ी हो जाएगी तो यूटिलाइज एरिया होगा। तो ये एक है, क्या है, एक रीजन्स कि जब हमने पीसीसी कॉलम प्रोवाइड किया तो क्या हो जाएगा, पीसीसी कॉलम में एरिया बड़ा होता है और आरसीसी कॉलम में एरिया छोटा होता है कॉलम का, तो हम आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करते हैं। सेकंड रीज़न है आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करने का, टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस विच मे बी कॉज्ड ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग। इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग मीन्स क्या, अभी ये हमारा एक कॉलम है, इसके सेंटर में ये लोड है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा बीम इसके यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, मतलब जो लोड है वो सेंटर में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट होंगे, और टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट होंगे तो वो रिजिस्ट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, आरसीसी कॉलम, टू रिजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस विच में बी कॉज ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग। क्या है, जो
लोडिंग है, मतलब जो सेंटर में लोड नहीं होता है उसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक लोडिंग। तो उसकी वजह से हमें क्या प्रोवाइड करना है फिर आरसीसी कॉलम। थर्ड रीजन है हमारा आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करने का, टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। जो भी इसके अंदर बेंडिंग होगा, तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है मे बी कॉज्ड ड्यू टू इसेंट्रिक ऑफ लोडिंग, जो ये इसेंट्रिक लोडिंग है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे, वो क्या हो जाएगा, ये आरसीसी जो कॉलम है वो कैरी कर लेगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है फिर, आरसीसी कॉलम। फोर्थ रीज़न है हमारा, टू रेजिस्ट अ ट्विस्टिंग मूवमेंट विच मे बी कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गई, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गई, या फिर अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स आ गया, तो वो भी रिजिस्ट कौन कर सकता है, प्लेन कंक्रीट रिजिस्ट नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस कैरी करेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस कैरी करेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट कैरी करेगा। उसके लिए हम आरसीसी कॉलम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, नेसेसिटी ऑफ कंस्टिट्यूशन मटेरियल इन कॉलम। जो भी हमें मटेरियल्स यूज़ करने हैं आरसीसी कॉलम में, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्या नेसेसिटीज़ है, वो अभी इस पॉइंट में हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट आपको पता है क्या है, कंक्रीट। कंक्रीट के विदाउट हम कुछ मेंबर्स जो है आरसीसी के वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो कंक्रीट ये बहुत इम्पोर्टेंट है मटेरियल में। तो कंक्रीट बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, जो कंक्रीट हम बनाते हैं वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है लेकिन टेंशन में वीक है। तो इसेंट्रिक लोडिंग आएगा तो हम क्या करते हैं फिर आरसीसी प्रोवाइड करते हैं। शुड नॉट theoretically require any reinforcement but for a given load the column may require a large section। जब यहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या आएगा, बड़ा सेक्शन आएगा। जब हमने प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड किया, आरसीसी प्रोवाइड किया तो सेक्शन छोटा हो जाएगा, तो इतनी जगह बच सकती है। ओके, सो फर्दर इट शॉर्ट कमिंग इज़ दैट इट इज़ अ वेरी वीक इन टेंशन एंड देयरफॉर क्या होता है, बहुत बार कंक्रीट ये टेंशन में वीक होता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ टेंशन नीड टू एग्जामिन in view of reinforcement is required to provide a to resist tension and to reduce the size of the column। जो भी ये है साइज़ है कॉलम की वो रिड्यूस करने के लिए, या फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस है, बेंडिंग स्ट्रेसेस है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है, वो लेने के लिए हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। यहाँ पे दो टाइप के रेनफोर्समेंट है, एक लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्स है और एक ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कहाँ पे और कैसे प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, और क्यों प्रोवाइड करना है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ भी है, क्यों प्रोवाइड करना है, नहीं प्रोवाइड किया तो क्या होगा, वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। टू असिस्ट अ कॉन्क्रीट इन रेजिस्टिंग कॉम्प्रेशन सो एज टू रिड्यूस ओवरऑल साइज ऑफ द कॉलम। हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट हमने अभी देखा, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट मीन्स क्या है, ये हमारा एक कॉलम है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रेनफोर्समेंट, ये लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट है और ये उसके टाइज है, ये हमारे कॉलम से उसके ये रेनफोर्समेंट है, ये हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। टू असिस्ट अ कॉन्क्रीट इन रेजिस्टिंग कॉम्प्रेशन सो एज टू रिड्यूस साइज, हम इसकी क्या कर सकते हैं, साइज हमने अभी देखा कंक्रीट में कि क्या है, साइज़ बड़ी होगी तो प्लेन कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉलम की साइज़ बहुत बड़ी आ जाएगी, लेकिन हमें एरिया रिड्यूस करना है, टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट होंगे तो वो कैसे कहाँ पे देना है बेंडिंग मूवमेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ये जो भी बार से इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, और ये जो भी बार से इसको बोलते हैं हम टाइज। तो भी सेकंड पॉइंट है लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइड करने का। सेकंड है टू रेजिस्ट एनी टेंशन
that might develop due to bending caused by transverse load, eccentric load और द मूवमेंट की वजह से, या फिर इसेंट्रिक लोडिंग मीन्स यहाँ पे सेंटर में लोड नहीं आता है, साइड में लोड आ जाता है बहुत बार। तो ये लोड आने की वजह से या फिर कुछ बेंडिंग होने की वजह से, कुछ ट्रांसवर्स लोड होने की, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, लोड जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज ड्यू टू सस्टेन लोडिंग। जो भी क्रीप के या श्रिंकेज के इफेक्ट हो जाएंगे वो हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट में रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट है हमारा यहाँ पे, टू प्रिवेंट और डिले सडन ब्रिटल कोलैप्स। मीन्स हमारा जो कॉलम है प्लेन कंक्रीट में क्या हो जाएगा, ये सडनली कोलैप्स हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ये फेल हो जाएगा तो ये सडनली कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी में पहले ये हमें वार्निंग प्रोवाइड करेगा फिर कोलैप्स होगा। सो ब्रिटल कॉलम्स टू इम्पार्ट नेसेसरी डक्टिलिटी टू द कॉलम। ये पहले क्या होगा, ऐसे बकल होने के लिए हमें पहले कुछ ये डिले, सडनली ये फेल नहीं होता है, ये हमें वार्निंग्स प्रोवाइड करता है और उसके बाद में ये फेल्स होते हैं। तो क्यों बाद में फेल्स होते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सडनली फेलियर कहाँ पे होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में सडनली फेलियर्स होते। इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू होल्ड द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। जो भी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो भी होल्ड करने के लिए हम ये लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड मटेरियल में है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करना है, कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसकी अब हम ये पॉइंट में स्टडी करेंगे। टू प्रिवेंट अ बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। ये जो भी हमने यहाँ पे देखा अभी, ये स्ट्रेट बार से, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार से, ये लॉन्गिट्यूडिनल बार से और ये टाइज है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बार से ये क्या होते हैं, बार ऐसे बकल्स हो सकते हैं। टू प्रिवेंट बकलिंग, जो ये बकलिंग है ये प्रिवेंट करने के लिए हम ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स का यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट अ लॉन्गिट्यूडिनल स्पिल्टिंग ऑफ कंक्रीट। जो भी स्पिल्ट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट, ये भी रिड्यूस करने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे टू resist डाइगोनल टेंशन ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर। शियर की वजह से जो भी टेंशन एक्ट होगा वो रेजिस्ट करने के लिए हम ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट। फिफ्थ है टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन पोजिशन। लॉन्गिट्यूडिनल जो भी रेनफोर्समेंट में इसको होल्ड में करने के लिए भी हमें ट्रांसवर्स बार प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है यहाँ पे टू प्रिवेंट और डिले अ सडन कोलैप्स। क्यों, हमने अभी देखा सडन कोलैप्स होता है बहुत बार, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, सडन कोलैप्स होता है। लेकिन ट्रांसवर्स हमने यहाँ पे आरसीसी प्रोवाइड किया है, मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइड किए हैं, ट्रांसवर्स बार प्रोवाइड किए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पहले हमें वार्निंग्स देगा, उसके बाद में ये कोलैप्स होगा। एंड इम्पार्ट नेसेसरी डक्टिलिटी ऑफ द टू द मेंबर। ये देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है। जो फर्स्ट डायग्राम से फंक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड रेनफोर्समेंट, जो भी यहाँ पे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो कैसे एक्ट होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शंस है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बकलिंग ऑफ यल बार प्रिवेंटेड। ये जो भी यल बार से ये यहाँ पे ऐसे देखो कैसे बकल्स हो रहा है, ये जो बकल्स हो रहा है ये प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग अरेस्टेड। यहाँ पे स्प्लिट मतलब क्या, ये जो कॉलम है ये ऐसे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक पार्ट और ये 2 पार्ट। ये देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, रिजिस्ट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में डायगोनल टेंशन रिजिस्ट। डायगोनल टेंशन मीन्स ये क्या है, डायगोनल, ये एंगल में क्रैक क्रिएट होते हैं। ये जो भी एंगल है ये ऐसे एंगल्स 30 डिग्री 45 डिग्री में ये क्रैक यहाँ पे क्रिएट होते हैं, वो भी रिड्यूस करने के लिए हम ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद है कंक्रीट कन्फाइंड। कंक्रीट
प्रॉपर फिक्स रहने के लिए, उसके बाद में ये फेल जल्दी न होने के लिए, उसके अंदर कुछ स्पिल्ट अलग अलग ये क्या होता है, जो भी हमारा कंक्रीट से वो गैप्स होने की वजह से भी वो फेल हो सकता है। तो वैसा न होने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके फोर क्या क्या फंक्शंस है, इसके 4 फंक्शंस है। फर्स्ट है यहाँ पे क्या करते हैं हम, बकलिंग यल बार प्रिवेंटेड, यल बार्स का बकलिंग प्रिवेंट करते हैं, स्पिल्टिंग प्रिवेंट करते हैं, डायगोनल प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये कन्फाइंड कंक्रीट कन्फाइंड भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टडी करना है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम हमने देखा, उसका हमें यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमें। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो कौन सा कॉलम लेना है, शॉर्ट कॉलम लेना है या लॉन्ग कॉलम लेना है, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो हमने अभी देखा लोडिंग में स्लेंडरनेस रेशो के 2 टाइप से, एक है शॉर्ट कॉलम और दूसरा है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम किसको बोलते हैं हम, शॉर्ट कॉलम मीन्स क्या है, यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय बी और डी, जो भी लिस्ट होगा वो हम यहाँ पे लेंगे। तो ये क्या है, 12 से छोटा होगा, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। और लॉन्ग कॉलम किसको बोलते हैं हम, यल डिवाइडेड बाय बी और डी, ये क्या होगा, 12 से बड़ा होगा, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। ओके, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ये दोनों का डिफरेंस। शॉर्ट कॉलम मीन्स क्या है, अ कॉलम इज कंसिडर टू बी अ शॉर्ट इफ द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये 12 होगा या फिर 12 से कम होगा, जो रेशो है, कौन सा रेशो, यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लिस्ट डायमेंशन मीन्स बी और डी में से। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि बी है हमारा, विड्थ है कॉलम की 350 और डी है 450। तो 350 और 450 में कौन सा लिस्ट है, छोटा कौन सा है, 350। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे फिर, 350, जो भी यल इफेक्टिव आएगा वो डिवाइडेड बाय 350, ये क्या होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। नेक्स्ट है लॉन्ग कॉलम में, अ कॉलम इज कंसिडर टू बी अ लॉन्ग इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू लिस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12। ये क्या होगा, 12 से बड़ा होगा, मीन्स क्या है हमारा यल इफेक्टिव और जो भी लीस्ट डायमेंशन है बी और डी में से उसका रेशो बड़ा होगा। मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट डायमेंशन, ये रेशो है हमारा 4.75। ये 4.75 ये क्या है, 12 से छोटा है, तो ये आएगा शॉर्ट कॉलम में। ओके, और एक रेशो है हमारा यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट डायमेंशन, ये जो रेशो है हमारा ये है 14.5, तो ये क्या है, 12 से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हियर, शॉर्ट कॉलम, द फेलियर ऑफ द शॉर्ट कॉलम इज बाय क्रशिंग। ये जो शॉर्ट कॉलम है ये क्रशिंग की वजह से फेल हो सकता है। और इन अ लॉन्ग कॉलम द कॉलम जनरली फेल इन अ बकलिंग, ये लॉन्ग कॉलम की हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये बकल में फेल होते हैं, और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होते हैं। तो लॉन्ग कॉलम ध्यान में रखो, लॉन्ग कॉलम की हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये 6 मीटर का कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर का कॉलम है तो उसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी वजह से वो बकल हो जाएगा और ये बकलिंग में फेल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट कॉलम में, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू अ शॉर्ट कॉलम इट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40। The ratio of effective length of long column to resist radius of gyration is greater than 40। जो भी इफेक्टिव लेंथ, कॉलम का जो भी इफेक्टिव लेंथ है और रेडियस ऑफ गायरेक्शन, इसका जो भी रेशो है वो रेशो क्या है, इक्वल 40 है और 40 से छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये है शॉर्ट कॉलम। और इफेक्टिव लेंथ
और रेडियस ऑफ गायरेशन का जो भी रेशो है वो 40 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। ओके, बकलिंग टेंडेंसी इज़ वेरी लो। यहाँ पे बकलिंग कॉलम की हाइट छोटी होने की वजह से, शॉर्ट कॉलम में क्या है, कॉलम की हाइट कम होती है, तो कॉलम की हाइट कम होने की वजह से बकलिंग के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बकलिंग टेंडेंसी इज़ वेरी लो। तो बकलिंग टेंडेंसी यहाँ पे लो है क्योंकि कॉलम की हाइट छोटी है। लॉन्ग कॉलम एंड स्लेंडर कॉलम बकल इजीली, ये बकल जल्दी होते हैं क्योंकि लॉन्ग कॉलम में क्या है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये बकल जल्दी हो सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट कॉलम में है द लोड कैरिंग कैपेसिटीज हाई एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉलम, इसकी लोडिंग कैपेसिटी है ये ज़्यादा है लॉन्ग कॉलम से। एट द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब सेक्शन सेम है, सेक्शन है हमारा 350/450, ये हमारा सेक्शन है, सेम है दोनों में, लॉन्ग कॉलम में भी सेक्शन सेम है और शॉर्ट कॉलम में भी सेक्शन, सिर्फ पर डिफरेंस कहाँ होगा, यल इफेक्टिव में, मीन्स लेंथ में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ में डिफरेंस होगा। तो उसकी वजह से क्या है फिर कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो शॉर्ट कॉलम में लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और लॉन्ग कॉलम में द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम इज़ लेस कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शन है, मतलब एरिया सेम है लेकिन हाइट डिफरेंस होने की वजह से क्या है, लॉन्ग कॉलम लोड कम लेता है और शॉर्ट कॉलम लोड ज़्यादा ले सकता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है आईएस स्पेसिफिकेशन। आईएस स्पेसिफिकेशन मतलब जो भी हमारा आईएस कोड है, तो इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है आरसीसी के लिए हमारा कौन सा है, IS 456। जो भी हम यहाँ पे IS 456 यूज़ करने वाले हैं, तो कॉलम के रिलेटेड हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफर क्लॉज नंबर 26.5.3, उसका पेज नंबर 48 है, वो हमें यहाँ पे कॉलम डिज़ाइन करने के लिए लेना है। उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस है हमें कॉलम डिज़ाइन करने के लिए प्रोवाइड किया है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस दिए हैं उसकी हम यहाँ पे शॉर्ट में स्टडी करेंगे, मतलब एरिया कितना लेना चाहिए, हाइट कितनी लेनी चाहिए, उसके बाद में वो बेंडिंग कहाँ पे हो सकता है, बिल्डिंग क्या लेना है, स्लेंडरनेस रेशो क्या आएगा, इफेक्टिव लेंथ कितनी लेना है, AST मिनिमम मीन्स एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करनी है, दो जो ये कॉलम है, ये कॉलम में से ये जो टाइज है, ये टाइज की स्पेसिंग कितनी लेनी है, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसके स्पेसिफिकेशन जो गाइडलाइंस है वो कहाँ पे दिया है, IS 456 पेज नंबर 48 क्लॉज नंबर 26.5.3, उसके अंदर ही हमें यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, ये जो भी वर्टिकल्स बार है इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ स्टील बार प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडिनली इन अ कॉलम, इट इज़ कॉल्ड एज अ मेन स्टील। ये क्या है, मेन स्टील होते हैं, ये जो भी लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल बार से ये होते हैं हमें यहाँ पे मेन स्टील हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मेन स्टील के बार कितने लेने चाहिए, उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट है इसमें एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, ASC मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक दिया है। ASC मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.80 ऑफ AG, मीन्स 0.80 ये परसेंटेज, 0.80% ऑफ AG मीन्स क्या है, B इंटू डी, ये जो भी है ASC मिनिमम क्या है, 0.80% ऑफ AG मीन्स B इंटू डी, इसका जो भी आएगा B जो भी दिया है हमारे पास में, B मीन्स 450 दिया है, D हमारे यहाँ पे 750 दिया है, तो इसका जो भी AS मिनिमम आएगा वो हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार, और वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और ASC मैक्सिमम बार कितना प्रोवाइड करना है, 6% ऑफ AG, मीन्स क्या है 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100, AG मीन्स B इंटू डी।
AG मीन्स क्या है, टोटल ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम मीन्स B इंटू डी। एस मीन्स क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट मीन्स जो भी हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करेंगे उसका एरिया वो हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद में बी पार्ट है हमारा यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, मिनिमम कितने प्रोवाइड करने हैं। फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो 4 प्रोवाइड करने हैं, सर्कुलर कॉलम होगा तो 6 प्रोवाइड करने हैं। ये कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह है। तो ये हमारा ऐसा रेक्टेंगुलर कॉलम है तो इसको 4 साइड में हम क्या करेंगे, ऐसे 4 बार्स प्रोवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर 4 नंबर ऑफ बार्स। इफ़ ये सर्कल में होगा तो हमें यहाँ पे क्या है 6 प्रोवाइड करने हैं, 1 2 3, ये 4 5 और ये यहाँ। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स में हमने स्टडी किया कि रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो 4 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करने हैं, सर्कुलर होगा तो 6 नंबर्स ऑफ बार हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद में सी है हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। जो भी हम बार्स प्रोवाइड करेंगे इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ये बार्स का डायमीटर। तर जो भी डायमीटर से वो कितना होना चाहिए, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm। मिनिमम 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिंग कितनी लेनी चाहिए हमें लॉन्गिट्यूडिनल बार्स में, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट बार। द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन बार्स शैल नॉट बी लेस देन नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो क्लियर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, क्लियर स्पेसिंग मीन्स क्या है, ये हमारे अलग अलग बार से, तो ये बार्स में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो क्लियर स्पेसिंग इज ग्रेटर देन नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। जो भी ये है हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट मीन्स साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 20 है प्लस 5 mm मीन्स 25 से क्या होना चाहिए, क्लियर स्पेसिंग बड़ा होना चाहिए। ऐसा ये स्पेसिंग का क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार शैल नॉट बी मोर देन 300 मीन्स ये जो भी स्पेसिंग है ये 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 300 से ज़्यादा स्पेसिंग हो गया तो गैप ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से बार्स में बकल्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, मीन्स बार का पोजीशन डिस्प्लेस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मोर देन मतलब ज़्यादा कैसे होना चाहिए, जो भी हमारा नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm है उससे बड़ा होना चाहिए और 300 से कम होना चाहिए। ऐसा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। नॉमिनल कवर टू लॉन्गिट्यूडिनल बार्स, जो भी लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है हमारे उसका कवर कितना होना चाहिए, नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन। जो भी हमारा कॉलम है तो ये जो कॉलम से इसके अंदर हम ये कॉलम है, ये यहाँ पे क्या है हमारा कंक्रीट है और ये हमारे बार से, तो ये जो भी यहाँ पे है ये इसको बोलते हैं हम कवर। ये यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं हम कवर प्रोवाइड करते हैं, सी कवर। तो ये कवर कितना होना चाहिए 40 mm और लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, इस पे से जो भी बड़ा होगा। अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि बार हमारे 12 mm के होने चाहिए, तो 12 mm और 40 mm इसमें से यूज़ विच एवर इज़ मोर, ये दोनों में से क्या बड़ा है, 40 mm बड़ा है। तो 40 mm हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कवर। कितना प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे कवर 40 mm। ओके। इसके बाद में लैप लेंथ, लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। लैप लेंथ इज ए लेंथ ऑफ ओवरलैप बार रिक्वायर्ड टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रेस। अभी हमें यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करने हैं, मतलब हमारा एक बहुत कंटिन्यूस हमें कॉलम प्रोवाइड करना है। हमारा कॉलम है 30 मीटर्स का, तो 30 मीटर्स के इतने लंबे बार्स अवेलेबल है मार्केट में नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बड़ा हमारा कॉलम है, इसकी लेंथ है पूरी 30 मीटर्स, तो ये हमें पूरा प्रोवाइड करना है। लेकिन हमारे पास में अभी 15 मीटर्स के बार है, ये एक बार से हमारा 15 मीटर्स का, और हमें ये दूसरा भी प्रोवाइड करना है 15 मीटर्स का। तो ये जो भी बार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैप करेंगे इन दोनों में, तो उसको बोलते हैं हम लैप लेंथ। मतलब ये एक बार है और ये दूसरा बार है, तो ये दोनों बार्स में हम क्या करेंगे, इसको ये एक बार ये
जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लैपिंग। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लैप हुआ है, ओवरलैप हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लैप लेंथ। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वो लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए। लैप लेंथ क्या है, इज़ द लेंथ ऑफ ओवरलैप बार। ये बार्स क्या होते हैं, एक में के ऊपर ओवरलैप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उतनी मार्केट में लेंथ अवेलेबल न होने की वजह से हम ये ओवरलैपिंग बार्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन बार टू अनदर इफ़ टू डिफरेंट डायमीटर बार आर टू बी लैप्ड। लैप लेंथ बेस्ड ऑन अ स्मॉलर डायमीटर। ये लैप लेंथ क्या है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड होती है। लैप लेंथ इन कॉलम शुड बी 45D। कितनी होनी चाहिए लैप लेंथ, ये जो भी लैप लेंथ है, मतलब हमने देखा ये यहाँ पे एक बार है और ये दूसरा बार है, तो ये दोनों में जो भी ये लैप लेंथ है ये शुड बी 45D। मीन्स क्या है, 45 इंटू डेप्थ, उतनी हमें ये प्रोवाइड करना है। या फिर लैप लेंथ बीम स्लैब शुड बी 69D, इतनी होनी चाहिए। वेयर डी इज़ अ डायमीटर बार इन mm। यहाँ पे क्या है, डी मीन्स डायमीटर ऑफ बार। जो भी हमने डायमीटर ऑफ बार लिया है वो हमें यहाँ पे लेना है 45 इंटू डायमीटर ऑफ बार। और लैप मस्ट नॉट बी लेस देन 40 टाइम्स डायमीटर। 40 टाइम्स डायमीटर से ये क्या है, 40 टाइम्स डायमीटर से ये कम नहीं होना चाहिए लैप्स। बहुत बार ऐसे होगा लैप्स हमने बहुत कम प्रोवाइड किया, मीन्स ये एक बार है और ये एक बार है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर स्लिप हो सकता है। तो हमारा ये बार स्लिप हो गए तो हमारा कॉलम भी फेल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम, 40 डायमीटर से हम कम प्रोवाइड नहीं करते। तो ये है हमारा लैप लेंथ। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है, आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट अ कॉलम। मीन्स कॉलम क्या होता है, कॉलम की नेसेसिटीज़ क्या है, आरसीसी कॉलम क्यों प्रोवाइड करना है, उसके बाद में कॉलम कैसे डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कितने टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, तो कॉलम कहाँ पे कैसे प्रोवाइड करना है, उसके अंदर स्टील कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसका कवर कितना होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है। आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।